هلا وغلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله. آم، اليوم راح نلاقي الممثل الهندي الجديد اللي هو ابن الفنان الكبير في السينما الهندية ميتن تشكربورتي. ولده ناموشي تشكربورتي، اسمه ناموشي تشكربورتي. هو مكتوب بالانجليزي نماشي، ولا في ناس بالعربي يقولوا عليه نماشي تشكربورتي. هو اسمه ناموشي تشكربورتي. راح يدخل معانا لايف ان شاء الله بعد شويه، وراح نستفسر امور كثيره. هذا اول ظهور له تقريبا في مجال السينما، مع فيلم اسمه باد بوي من اخراج راج كومار سانتوشي. هي از ذا دايركتور اوف ذا موفي. هو مخرج هذا العمل، وهذا اول عمل راح يكون له في السينما. هو عمل قبل في افلام قصيره كثيره على كلامه، وكذلك في له عمل قصير عمله في امريكا من زمان، من قبل 10 سنين. لكن هذا أول ظهور له في السينما الهندية. بيكون شيء مهم طبعا في مسيرته الفنية. ننتظر نموشي تشكربورتي. We are waiting for Namoshi Chakraborty. He will enter in 1 minute. I will send this to him. Namoshi, I am here. تكلمنا عن ناموشي تشكربورتي. So we are waiting for ناموشي تشكربورتي. ناموشي تشكربورتي, I introduce you in Arabic. Just we are waiting you to join me now. لازم يدخل عنا الحين إن شاء الله. We are waiting ناموشي. شارك مع أحد حسين تصوير مسلسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوكي. Can you enter Namoshi? You can request now. Okay. بسم الله. نموشي. Hello, hello, Adab, Adab, what's up? السلام عليكم من Arabic. তুমি কেমন আছো? আমি ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? That's mean how are you in Bengali, and you replied that I am alhamdulillah, I'm good, fine, alhamdulillah, like that. Yes, brother, you're absolutely right. It's so nice to be on your show. It is my pleasure to have you here in my life in my country, Abu Dhabi, and it is really honor for us to have the biggest star of Bollywood, Mithun Chakraborty, son Namoshi Chakraborty. Yes, it's my pleasure, and thank you so much for having me here. And I'm so sorry, it's locked down, so I can't do much with my hair. I've tried my best to look good. No, you are remind me of your father in early 80s and late 70s by this hairstyle. I'm glad. Thank you so much. Thank you. So you are so most welcome. Namoshi, first of all, I want to ask you, do you prefer me to speak with you in English or Arabic or Hindi? English would be perfect. Better than Hindi? Hindi also works, English also works. Arabic, I don't understand much. So I would be happy with English or Hindi, whichever language you're more comfortable in. Okay, I will do English with you. Vardhan Puri is online. He's a very good friend and a fantastic actor. Hi, Vardhan. Oh, yeah. Vardhan, mashallah. Yeah, Vardhan, he's Amrish Puri's grandson. Yes, Amrish's grandson, and he's by far the best debutant of last year. He did so well in that film. Yeah. So, coming for the debut or हमारी जो पहली फिल्म है Bad Boy, it is directed by Rajkumar Santoshi. And हम सब जानते हैं राजकुमार संतोषी ने कितनी अच्छी फिल्में बनाई है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जैसे घायल, दामिनी, घातक, अंदाज अपना अपना, अजब प्रेम की गजब कहानी, या फिर फिल्म खाकी.
and he will know how to make star sons to prepare them in the screen, like Bobby Deol in Barsat. अभी उनकी बरसात आप है, Yes. नमोशी, बैड बॉय. सो ये फिल्म का सिलसिला कैसा बना? Well, वेल भाईजान, ऐसी बात है कि राजकुमार संतोषी साहब ने मुझे डेब्यू के लिए, मतलब ही लॉन्च्ड मी, तो इससे बड़ा ऑनर तो हो ही नहीं सकता मेरे लिए. ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ ऑल टाइम. So this film happened by coincidence. I was struggling. I was trying to find my way. मुंबई बहुत ही मैं कहूँगा सख्त शहर है. यहाँ पर कुछ आसानी से नहीं मिलता है. आप किसी के बेटे हो तो आपसे लोग मिल लेते हैं, लेकिन काम नहीं मिल जाता इतनी आसानी से. तो मुझे बहुत ठोकरों के बाद साजिद कुरैशी साहब मिले, जो बैड बॉय के प्रोड्यूसर हैं. तो उनके थ्रू मुझे फिर राजकुमार संतोषी साहब से मिलने का मौका मिला. And then Rajji liked me, Sajid bhai liked me, and then I got Bad Boy. So I'm extremely fortunate to have gotten such a big launch. माशाल्लाह, तुम्हारी आपकी जो हिंदी जबान है बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छी है. शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू. नमोशी, राजकुमार संतोष के बारे में आप भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं that he is when he direct any project he take long time to finish the movie. Before few months ago, जब मैंने आर्टिकल पढ़ा था कि उनकी बैड बॉय आपकी जो फिल्म है कुछ दिनों में खत्म हो गई जल्दी, so मैं चौंक गया. It surprised me that first time he finished the movie on time. Well, I think Rajji is a perfectionist, and I think with me and Amreen, in this film, Amreen, my co-actress, she's getting launched as well. तो नए एक्टर होते हैं तो मुझे लगता है न्यू कमर्स को हैंडल करना स्टार्स से थोड़ा आसान होता है. तो मुझे लगता है राजी वाज वेरी वेरी श्योर ऑफ व्हाट ही वांटेड टू डू विद अस. तो हमने अच्छे बच्चों की तरह 60-70 दिन पूरी राजी की गाइडेंस में काम किया. एंड राजी, आई थिंक ये जो कहते हैं टाइम लगता है, ये लगता है ये सब इट्स नॉट अप टू राजी ओनली. बहुत चीजें होती है फिल्म सेट पे, बट विद अस वी वर लकी कि 70 डेज में हम बैड बॉय शूट कर पाए. ओके, 70 डेज में आपने ये फिल्म खत्म कर दी. इसका मतलब ये फिल्म में हम क्या देखेंगे? भरपूर एक्शन या भरपूर कॉमेडी या ड्रामा? What we want to see? भरपूर रोमांस देखेंगे मैं और अमरीन के बीच, और भरपूर कॉमेडी देखेंगे. इस फिल्म में जॉनी लीवर हैं, राजपाल यादव हैं, राजेश शर्मा, शाश्वता चैटर्जी, अंबर बैनर्जी, इसमें बहुत जबरदस्त एक्टर्स हैं. तो आपको मजा जरूर आएगा. इट्स अ कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर. इट्स ऑन द लाइंस ऑफ अजब प्रेम की गजब कहानी. तो कुछ वैसा ही माहौल है, और पूरी उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी भाईजान. आपने जब जॉनी लीवर का नाम लिया तो मुझे एक बात याद आ गई कि जॉनी लीवर ही इज लकी चार्म फॉर न्यू कमर्स इन एनी मूवी. जैसे कि कहो ना प्यार है ऋतिक रोशन के लिए, जैसे कि गोविंदा लव 86 के लिए. तो मुझे ऐसा लगता है वो लकी चार्म आपके लिए भी बन जाएगा. वैसे भाईजान बात ऐसी, आई थिंक जॉनी भाई जो है वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए लकी चार्म है, बिकॉज उन्होंने मेरे हिसाब से कुछ 400 फिल्में कर ली हैं एज अ कॉमेडियन. तो मेरे हिसाब से जॉनी लीवर जैसा लेजेंड ने मुझे और अमरीन को इसमें ब्लेस किया है, और उनका कैरेक्टर इस फिल्म में इतना मजेदार है. आई थिंक आप लोग को तो मजा आएगा. एंड वर्किंग विद जॉनी भाई वाज अ ड्रीम. तो वो जो एक हफ्ता मेरे उनके साथ जो शूट था, मैं तो डिसबिलीफ में था कि जॉनी भाई मेरे साथ काम कर रहे हैं. तो for me that was the best period of the shoot, was shooting with Johnny sir. And this is a great thing that you have a blessing of great Amitabh and Salman Khan to introduce the Twitter your poster. Yes, I mean, Bhaijan, I feel my father has earned a very goodwill in the film industry. He has earned it by his hard work, his honesty. तो अभी 40 साल बाद जब मेरे फादर लेजेंडरी पोजीशन में पहुंच गए हैं और मेरा लॉन्चिंग हो रही है, तो मुझे लगता है टाइमिंग ने मेरी मदद कर ली है कि सलमान भाई, अमित अंकल की दुआएं और प्यार मिल रहा है मुझे, अमरीन को, हमारी फिल्म को. तो मैं तो फॉर्चुनेट हूं, एंड आई थैंक माय फादर एवरी डे. वाह, आपने एक्टिंग की जो आपने कहीं एक्टिंग सीखी है या इंस्टीट्यूट में गए थे पहले,
फिल्मों में आने से पहले? बिल्कुल बिल्कुल। क्या है ना भाईजान, मेरे घर में आपसे मुलाकात इंशाल्लाह बहुत जल्दी होगी तो आपको पता चलेगा, फिल्मी माहौल बिल्कुल नहीं है मेरे घर में। एक्टर सही। एक्टर है तो मेरे फादर अपनी जगह, मेरे ब्रदर मीमो अपनी जगह, मेरे दो भाई बहन अपनी जगह, मॉम अपनी जगह, भाभी। तो हमारे यहाँ सबको अपना राउट पकड़ना पड़ता है, यहाँ पे आसानी से कुछ नहीं मिलता है घर पे। तो मैं कहना चाहूंगा, मुझे किशोर नमित कपूर साहब की एक्टिंग एकेडमी में मैं था। आई लर्न लॉट देयर। फिर मैंने आलोक उल्फत साहब के साथ वर्कशॉप्स की, मैंने इम्प्रोव कॉमेडी मुंबई के साथ 3 साल लगातार मैंने स्टेज पे थिएटर किया, उनके साथ लाइव कॉमेडी करता था मैं। तो इन सब ने मुझे मदद की, लेकिन सबसे बड़ी जो एक्टिंग क्लास थी वो थी राजकुमार संतोषी साहब के साथ सेट पे। Because when the shoot started on the first day, I realized that Rajji is not a director, he is an institution. Because he यस। is such a brilliant director and such a great actor himself that जो भी मैंने सीखा था, I had to unlearn in order to portray my part in Bad Boy. राजकुमार के बारे में हम ये जानते हैं कि वो जब फिल्म बनाने का उनका जो जरिया है या उनका तरीका है, उससे हाँ पहले जी, जब आप वो स्क्रिप्ट सुनाते हैं, वो स्क्रिप्ट सुनाने का जो अंदाज है उनका एक्टिंग का अंदाज है, ऐसा मैं सुना था उनके बारे में। आई डोंट नो बिल्कुल सही। हाउ ही डील विद यू। बिल्कुल सही सुना है आपने, क्योंकि हम जब जाते थे, मैं और अमरीन जाते थे राज जी के घर पे इन मुंबई, वो जुहू में रहते हैं, तो वो हमें सीन सुनाते थे। तो एक बार तो हम मतलब चकाचौंध रह गए थे भाईजान, क्योंकि एक सीन था जिसमें कुछ 7-8 एक्टर्स हैं और हमें 7-8 एक्टर्स की बॉडी लैंग्वेज, वॉइस मॉड्यूलेशन और कैरेक्टराइजेशन के साथ वो डायलॉग सुना रहे थे। तो मुझे एक वाओ। मिनट के लिए लगा कि यार ये आदमी इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है, और सेकेंडली मैं थोड़ा खुश भी हो गया कि सेट पे बहुत मदद हो जाएगी। बिकॉज एन एक्टर्स डायरेक्टर इज एन एक्टर्स ड्रीम, क्योंकि अगर आप फंस रहे हैं तो आपका डायरेक्टर आपको गाइड कर सकता है। और राजकुमार संतोषी साहब ने हर रोज मुझे और अमरीन को गाइड किया है। ही हेल्प्ड अस थ्रू आउट द शूट ऑफ बैड बॉय। अच्छा, ये जो टाइटल है बैड बॉय, हाँ, ये आप पे तो आधारित रहेगा ये टाइटल, मुझे पक्का यकीन है कि बैड बॉय आप ही रहेंगे फिल्म के अंदर। तो हाउ स्वीट। मतलब क्या था बैड बॉय का, जैसे कि तो ये बैड बॉय? हाँ, ये इट्स अ रोमांटिक कॉमेडी भाईजान। तो इसमें जो है, ये मेरा जो कैरेक्टर है रघु वर्मा का, वो है बैड बॉय सिर्फ उनके लिए जो उसे पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा रेबेलियस है, थोड़ा नॉटी है, स्ट्रीट स्मार्ट है। तो उसके हिसाब से कहानी है। तो ही इज अ लवेबल बैड बॉय, ही इज नॉट अ विलन, ही इज अ वेरी लवेबल बैड बॉय। वेरी गुड। इन फिल्म इंडस्ट्री स्पेशली इन बॉलीवुड, आजकल हाँ, जब ये जो आजकल के जो माशाल्लाह सोशल मीडिया पे जो बहुत लिखते हैं आजकल, बोलते हैं ये नेपोटिज्म है, ये हीरो का बच्चा है, ये स्टार के वगैरह वगैरह। ये आप पे हाँ। जब आपको ये जब सुनाई देता है तो आपको कैसा लगता है? या आप अब फिल्म इंडस्ट्री में हो भी, ऐसी बात तो हो ही शायद, क्यों ये छिड़ा आपके साथ ये बात? नहीं, बात ऐसी है कि उन लोग भी अपनी जगह सही है भाईजान। नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है बॉलीवुड में हर जगह, मुझे लगता है नेपोटिज्म एग्जिस्ट एवरीवेयर। बट बॉलीवुड हम्म। हॉलीवुड में नेपोटिज्म वर्ड थोड़ा फैशनेबल लगता है, बिकॉज फेम जुड़ा हुआ है। You know, या like my father was a star, my mom was a star, my brother is a star. Now I am coming in films. तो उनको लगता है यार ये देखो, एक ही ब्लड लाइन को चांसेस मिले जा रहे हैं, हम लोग यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, इनको आसानी से मिल जाता है। बट माई फैक्ट इज, इफ नेपोटिज्म एग्जिस्ट देन इट एग्जिस्ट एवरीवेयर। आप भी अपने बच्चे के लिए करेंगे, मेरे फादर भी मेरे लिए ही करेंगे। बट इसमें नेगेटिविटी मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि सच भी है। क्योंकि ऐसा नहीं है सही। कि मैं सोचता हूँ यार मुझे मिल गया तो दूसरों को नहीं। मैंने देखा है मेरे से कम मेहनती लोग को भी लॉन्च फिल्में मिल जाती है। इसका कोई बात नहीं है कि यार नेपोटिज्म नहीं। आई हैव आल्सो फेल्ट जेलस एट टाइम्स, तो ये नेचुरल बात है। लेकिन इसका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि प्रिविलेज जो होता है वो आपको बर्थ राइट में मिल गया है मुझे अब। तो अब मेरे ऊपर है मैं उसको कैसे हैंडल करूँ ना। कोर्स ये जब मुझे भी ये बात जब किसी ने कहा था, मेरा एक बहुत सिंपल जवाब है इस बात में कि अगर पृथ्वीराज कपूर अपने बेटे राज कपूर द लेजेंडरी उनको लॉन्च करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो अभी से अभी तक जो सिलसिला चल रहा है वो सही सिलसिला है, कोई गलत नहीं है। लोहार का बेटा लोहार रहेगा और एक्टर का बेटा एक्टर रहेगा, तो यही बात सिलसिला मेरे ख्याल से कुछ उसमें गलती नहीं है। बिल्कुल, आई मीन हर बाप माँ अपने बच्चे से तो प्यार करेंगे ही ना। कोर्स अभी मिथुन दा द लेजेंडरी फ्रॉम मिर्गिया टिल उनकी लास्ट फिल्म तशकंद फाइल्स, यस।
उनका जो क्या बोलते जर्नी थी बहुत लंबी थी माशाल्लाह 40 इयर्स। अभी अगर मैं आपको ये पूछूंगा, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, which movies was your nearest to your heart from Mithunda? At least you can give me 3 movies. It's okay. Definitely. Actually, Bhaijan, we have 4 siblings. You know, I have 2 older brothers and I have a younger sister. मैं तीसरा भाई हूँ। लेकिन आई एम द ओनली सन जिन्होंने मेरे फादर की हर फिल्म देखी है। मतलब Wow. प्रज्ञा से ताशकंद फाइल्स तक उनकी सारी फिल्में मैंने देखी है। 380 फिल्में उनकी रिलीज्ड हैं इन बंगाली, इन उड़िया। उनने बहुत लैंग्वेजेस में भी काम किया, तमिल में भी काम किया है। तो मैंने वो सारी फिल्में देखी हैं। तो उनमें से मैं कुछ नाम जरूर लेना चाहूंगा। आई थिंक प्रेम प्रतिज्ञा वाज ब्रिलियंट with Madhuri Dixit. Yeah, Agnipath I was love it. fantastic with I Mr. love it. Bachchan, and I even loved this film called Phool Aur Angar, which came in the 90s, which had great music, and Shanti Priya was opposite him. That was a very good film, and of the last, decade, I would say, Oh My God was a great film. Oh wow, wow. Very good choices of movies, mashallah. अगर मुझे आप पूछेंगे तो I maybe 70% I agree with you with the movies which you are choosing. I can add with them Gulami, Yes, Koi Shak. Oh my God, one of my favorite movie also. अगर मैं आपको ये पूछूंगा, पब्लिक के पास टाइम नहीं है, हाँ, ये किस फिल्म का डायलॉग है? जीते हैं शान से? Yes, you are right. Yeah. So that means I will not exam you. You watch all your father's movie. That's very nice. Absolutely. That's very nice. नमूजी, अभी बैड बॉय जो अभी माहौल है लॉकडाउन का, it is virus corona. I know the feeling you have feeling also. You are thinking about your brother. आपकी जो big brother थे, उनकी जो लंच हुई थी, या कोई भी स्टार किड्स की जो लंच हुई थी, वो टाइम में ऐसा माहौल नहीं था। सिनेमा हॉल खुला था और सोशल मीडिया का इंटरव्यूज रहता था कुछ बिग बजट में या ऐसा वगैरह। तो ऐसा कुछ नहीं आपके अंदर? यू डोंट फील लाइक ओ नो व्हाट्स हैपनिंग दिस, व्हाई मी, व्हाई इन माय टाइम? वेल ऑनेस्टली आई थिंक वी ऑल फील दैट कि हमारे इस लाइफ टाइम में ये कोरोना वायरस आया और सब कुछ, मतलब it has devastated so many lives around the world. लेकिन सेल्फिशली नहीं सोचना चाहिए भाईजान। जान है तो जहान है। फिल्म तो हमारी रेडी है, हमने बहुत प्यार से फिल्म बनाई है। अब दौर ऐसा चल रहा है कि डर है लोगों में, तो जब एक बार डर हट जाए, लोग कॉन्फिडेंट हो जाए, सिनेमा खुल जाए, तब मेरी फिल्म जब आएगी मुझे बहुत मजा आएगा। क्योंकि मुझे लगता है आई विल बी अ फिल्म एक्टर पोस्ट कोरोना वर्ल्ड। तो शायद आई विल बी अ न्यू फेस, पीपल माइट वांट टू सी मी एंड अमरीन। सो मैं आई टेक इट ऑन माय स्ट्राइड एंड आई होप कि हम बहुत जल्दी इस सिचुएशन से निकल पाए। ओके, अभी आपकी जो मूवी आएंगी सिनेमा घर में इंशाल्लाह, वो टाइम अभी तक मुझे पता नहीं, रिलीज टाइम कब है? शायद अभी तक हमारे पास कोई डेट नहीं, डेट तो कोई नहीं है हमारे पास। कुछ शूटिंग बाकी है फिल्म की? बस कुछ एक आध हफ्ते का काम बाकी रह गया है। वो हम जैसे यहाँ पे शूट खुलेगी फटाफट करके हम तैयार रहेंगे फिल्म के साथ। यानी कुछ सॉन्ग वगैरह आने वाला है? 2 गाने बैलेंस है। हिमेश भाई हमको, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर है हिमेश रेशमिया साहब, तो उन्होंने बोला नहीं गाने तो मैं सुपर हिट ही दूंगा, तो उन्होंने थोड़ा वक्त लिया, लेकिन जो उन्होंने गाने दिए माशाल्लाह आर फैंटास्टिक। So when we see the trailer of the movie or teaser, first look teaser, we are hoping very soon. So maybe by June or mid June we will, or end of June we will officially release the teaser of our film. Okay. आपकी जो को एक्ट्रेस है उनका नाम अमरीन कुरैशी है? अमरीन कुरैशी, yes. या उनके साथ काम करने का कैसा भाव रहा, या हाउ इज द एक्सपीरियंस? Well, I was pleasantly surprised with अमरीन, क्योंकि जब हम न्यू कमर होते हैं, हम खुद इतने डिलेमास में होते हैं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। ऊपर से हीरोइन भी बिल्कुल नहीं थी, तो मैं बड़ा वो था कि यार पता नहीं अब क्या होगा। लेकिन भाईजान अमरीन में ऐसा टैलेंट है कि मैं और राज्य हम सब दंग रह गए, बिकॉज वो इतनी प्रोफेशनल और उसको एक्टिंग की समझ इतनी है कि यू विल बी सरप्राइज्ड व्हेन यू सी द फिल्म, प्लेजेंटली सरप्राइज्ड that she has done so well in the film. So my experience with her was a blast, and she's a very dear friend of mine, and as an actress I really respect her because she has excelled in the film.
वाह। आपके फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस इन हॉलीवुड और बॉलीवुड? Well, for मुझे 1 पता to है 10, मिथुन 1 दा, to 10 is Mithun Chakrabarti. ऑफ कोर्स। Yes, 1 to 10 is Mithun Chakrabarti. After Mithun Chakrabarti, I'm a big fan of Govinda. I'm a huge fan ओह of, I'm a die-hard fan of Govinda. I love Shah Rukh Khan. I love Salman Khan. I love Amitabh Bachchan. All these. Varun Dhawan is, I'm a fan of his. Vardhan Puri का मैं बहुत बड़ा fan हूँ. But Govinda, Salman, Shahrukh, मतलब I'm a fanatic. Govinda साहब की तो कोई film, again, just like my father, I've seen everything of his. And Hollywood, Peter O'Toole. I'm a huge fan of Peter O'Toole. ओह, Lawrence लॉरेंस of ऑफ अरेबिया। Arabia. Yes, वाह। yes. I'm a huge fan of Peter O'Toole. आप जानते हैं ये फिल्म में दिलीप कुमार होने वाले थे? मैंने सुना है लॉरेंस कि दिलीप साहब होने वाले थे, फिर उमर शरीफ आए, बहुत कुछ था उस फिल्म का। या वाओ, यू हैव गुड नॉलेज अबाउट old movies also. मैंने सुना है आपने कुछ शॉर्ट मूवीज में भी काम किया है पहले। हाँ, मतलब सो माय सेकंड ब्रदर उष्मे चक्रवर्ती, ही इज अ राइटर डायरेक्टर। वो अभी वाह। हॉलीवुड में काम कर रहे हैं एज अ राइटर। उनके साथ मैंने कुछ शॉर्ट फिल्में की हैं। तो मेरे दोस्तों के साथ हम लोग उनकी जो होम मूवीज होती थी उसमें काम करते थे। उसमें एक बार अवार्ड भी मिल गया था मेरे भाई को कनाडा में। तो वी हैव ओह, डन दैट, बट आई हैव नॉट वर्कड इन शॉर्ट फिल्म्स इन अ व्हाइल। अच्छा, अगर हिंदी सिनेमा के बारे में अगर मैं पूछूंगा, आपको कौन से किस्म के गाने पसंद है? क्लासिकल सॉन्ग्स या फिर आजकल के जो रिमिक्स सॉन्ग्स, ये पसंद है, या क्या आपको अच्छा लगता मुझे है? पसंद है 80s और 90s का म्यूजिक। आई ओके। लव पप्पी लहरी, आई लव आनंद मिलिंद, आई लव अनु मलिक, कुमार सानू, उदित नारायण। दिस इज माय प्लेलिस्ट। I don't get remixes. I've never understood remixes. But I love old music. I think melody is lost. You know, so I hope with ओके। Bad Boy you will see some melody because Himesh Bhai has stopped it. लेकिन मुझे 90s और वाह 80s के गाने बहुत पसंद है। वाह। आपके फादर माशाल्लाह, उनके कितने अच्छे अच्छे गाने हैं, जैसे प्यार झुकता नहीं में जो एक गाना था, तुम्हें अपना बनाने से पहले मेरे जाम Yeah, मुझे बहुत पहुंचना है, या फिर जिहाले मस्ती मकुन बरंदिश। ये जो from शब्बीर कुमार गुलामी और था, मोहम्मद रफी का जो टाइम था, वो भी कितना खूबसूरत टाइम था। बहुत बहुत अच्छा था। अच्छा, मैं आपको एक ब्रेक देना चाहता हूँ हमारी तरफ से। जी, ये एक कहवा है, अरबिक कहवा, जो हम ओके बोलते हैं, इट्स कॉफी, अरबिक कॉफी, बट इसका नाम है कहवा। हम ओके। इसको ऐसा पेश करते हैं कि इसमें क्वार्टर डालते हैं, फुल नहीं डालते, क्वार्टर इतना। हाँ, क्वार्टर। हाँ, क्वार्टर फुल नहीं डालते, क्योंकि हमारा ये जो ओके, ट्रेडिशन है, तो विजिटर को इतना देते हैं। व्हेन ही विल ड्रिंक इट एंड ही गिव मी लाइक दिस, दैट मींस ही नीड मोर। अगर उसे बस अच्छा नहीं चाहिए तो ऐसा खिला सकता है, लाइक दिस, अच्छा दैट अच्छा, ऐसा मींस कुछ है। या दैट्स आवर ट्रेडिशन। ओके, दैट्स वेरी तो स्वीट। आप कॉफी शौकीन है, या कड़क, या चाय, या फिर? आई एम अ कॉफी पर्सन। हम्म। आई लाइक कॉफी, आई लाइक कॉफी। कभी भी आप विजिट किए हैं यूएई, दुबई, अबू धाबी? मैं दुबई आया हूँ। आई हैव बीन टू दुबई इन ओके। 2013 with my family. I love it. I love it. I love the culture. I love the people. I love the atmosphere. And I'm waiting to come to Abu Dhabi and meet all of you. एंड अगर फ्यूचर प्लान में अगर आपको कोई ऐसी फिल्म मिले कि यहाँ पे आप शूटिंग करेंगे, या फिर अरबी फिल्म रहेंगी और आप हाँ, उसमें एक्टिंग करेंगे, तो आप करेंगे ये चीज? अरे अरे बिल्कुल काम करेंगे सर। काम काम करते जाएंगे जिंदगी में। I love working. I love to act. It will be my pleasure. ओके। कुछ लोग पूछते पूछते हैं बहुत कि मिथुन जी, आप घर में आपके साथ उनका कैसा स्वभाव है, यानी जैसे कि कैसे इंसान इंसान की तरह पता है, बहुत फैन फॉलोइंग है मिथुन दा जी की जी जी। पूरे जहान में। तो वो उनको एक ही नजरिया से देखते हैं, डिस्को डांसर, या फिर Yeah, जैसे प्रेम प्रतिज्ञा, कोई शक, ये नजरिया से देखते हैं। लेकिन बिल्कुल वो बिल्कुल। हर बार उन पे एक सवाल आता है, वो कैसे इंसान है, एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे है आपके साथ या किसी हाँ, और के साथ?
मैं तो कहूंगा माय फादर जो है, मेरे डैड जो है, वो दुनिया के सिंपलेस्ट आदमी है। ही इज द मोस्ट हम्बल, हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट मैन। हमारे घर पे तो मतलब ही इज जस्ट अनदर फादर, अ वेरी डिसिप्लिन्ड एंड committed father. My mom as well. I'm very fortunate bhai that my parents have given us a very humble life. You know, हम लोग को ज़्यादा Bollywood vibe में नहीं रखा गया है. We are very safe from the glitz and glamour world. We are very humble, and I credit my parents for giving us such a simple life. As far how is he as a person, I would say my father's the ultimate dude. वो मुझे लगता है एक बहुत अच्छे दोस्त है मेरे, एज वेल एज माई फादर. बट द बेस्ट क्वालिटी अबाउट माई फादर इज दैट ही इज अ वेरी सिंपल मैन. ही हैज नो फेक एयर्स अबाउट हिमसेल्फ. ही इज वेरी रियल. दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। एक ऐसा सवाल आ गया मेरे जहन में कि अभी जो लॉकडाउन का जमाना है, हमें अभी तक पता नहीं है, ये तो फोगी है, कब खत्म होने वाला है, कब ये सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा जो पहले जमाने का था, सिनेमा खुलेंगे, रेस्टोरेंट्स खुलेंगे। अगर ये सिलसिला नवंबर या फिर दिसंबर तक चला, तो हाँ, आपके नजर में फिल्म ओटीटी में रिलीज होना अच्छा रहेगा या फिर वेल, इंतजार करना पड़ेगा? हाँ, मैंने प्रोड्यूसर साहब से बात की, साजिद भाई साहब से. तो उनका कहना है, यार तेरी पहली पिक्चर है, अमरीन की पहली पिक्चर है, तो बड़े पर्दे पर ही आओ. तो हमारी उम्मीद तो यही तो है भाईजान, बड़े पर्दे पे आएंगे. लेकिन अब जरूरी है सेफ्टी, लोगों की सेफ्टी. तो जब वो एक बार ठीक हो जाएगी, इंशाल्लाह हम जरूर थिएटर्स पे आएंगे. व्हाट यू आर एक्सपेक्ट अबाउट दिस मूवी? क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या दिख रहा है? ये जब फिल्म रिलीज होगी, आप कहाँ अपने आप को देखेंगे मैं तो भाई इसके सच बाद? कहूँ तो मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे अपने दिल में रखें इस फिल्म के बाद. आप लोग मुझे प्यार करें, मुझे और अमरीन को सपोर्ट करें, हमारे एक्टिंग को अप्रिशिएट करें. तो मैं अपने आप को बड़े पर्दे पे देखता हूँ और ये विजुलाइज करता हूँ कि लोग अंदर आए हैं, उन्हें मजा आ रहा है और आप लोग खुश हैं हमारे काम से. Okay. नमूशी से हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जैसे कि आप बोले कॉमेडी, रोमांस, एक्शन, और क्या क्या करना चाहते हैं? मिर्गिया जैसी फिल्म करना चाहते हैं आप? यस, एब्सोल्युटली. मुझे लगता है एक्टर का काम है चैलेंजेस लेना. और मैं फैन हूँ मिथुन चक्रवर्ती और पीटर ओटूल का और गोविंदा का. तो ये सारे एक्टर्स जो है, ये कोई टाइप कास्ट एक्टर्स नहीं है. You know, if my father did Disco Dancer, he also did Mrigya. If he did Gulami, then he also did Agnipath, then he also did Jallad. So my father is undoubtedly the most versatile actor ever. You know, he's the most underrated as well, but he's extremely versatile. And same goes for Peter O'Toole. You know, Lawrence of Arabia किया तो Beckett भी किया तो Stuntman भी किया. So I would love to do roles that challenge me. आप राजकुमार संतोष के साथ काम कर रहे हो, उनकी सबसे अच्छी फिल्म आपको क्या पसंद आई उनके उनके डायरेक्शन में? यू नो, राज जी, मुझे लगता है उनकी जो अगेन वर्सटैलिटी की बात हो तो उनका डेब्यू था फिल्म घायल से, विच वाज अ वेरी या इमोशनल एक्शन फिल्म. फिर उन्होंने बनाई दामिनी, विच वाज अ कोर्ट रूम ड्रामा अबाउट वुमेन पावर. एंड देन ही टुक अ कंप्लीट समरसॉल्ट एंड ही मेड अंदाज अपना अपना, which is according to me the funniest Hindi comedy film of all time. Slapstick comedy यस, बनाई. उसके बाद उन्होंने कितनी लेजेंड ऑफ भगत सिंह तक बनाई, फिर अजब प्रेम की गजब कहानी, फटा पोस्टर. माय पर्सनल फेवरेट इज अंदाज अपना अपना, बिकॉज मैंने ओह, कुछ वो 25 बार देखी है वो फिल्म. वाह, वाह। सब लोगों की बहुत पसंदीदा फिल्म है वो, और अपने जमाने बिल्कुल. से पहले आगे थी वो फिल्म जब आई थी, बहुत जब बहुत रिलीज। बहुत ही अच्छी फिल्म. बहुत अच्छी फिल्म थी। यहाँ अरब लोग, यहाँ हमारे जो कंट्री में है या फिर मिडिल ईस्ट के जो लोग हैं, बहुत बड़े फैन हैं आपके फादर के। और उनका उनके पास कई कई फैन क्लब्स है, जैसे कि एक यहाँ पे है, उनका नाम है वफा फ्रॉम इराक। शी ओके, हैव फैन following club for Mithunda in Facebook, very huge fan following club. दैट्स सो स्वीट. व्हाट्स हर नेम, व्हाट्स हिज नेम? आई डोंट नो. इज इट अ वुमन? Wafa. Wafa. Okay, that's incredible. That's very sweet of you, Wafa. All my love and all my father's love. Thank you. Also, there is one guy, his name Saleh. He's from UAE, Ras Al Khaimah. He's a I die-hard think fan he of is you. commenting as well, right? Yeah, they are commenting here, and he's die-hard fan of your father. अगर कोई भी आपके
बाप के बारे में कुछ उलट सुलट बोलेंगे तो उनकी आंखों से खून निकल आता है। ये इनका नाम है सालेह। अरे क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू ब्रदर, हाउ स्वीट। Yeah. I hope that all fan following going, inshallah, blessing to Namoshi in the future. थैंक And यू, हाउ स्वीट। about Bad Boy, yeah, Bad Boy tag, ये जो आपका फिल्म का टाइटल है बैड बॉय, अगर हम कोई भी टैग करेंगे इंस्टाग्राम पे तो very big names coming, a very huge number, like more than 100,000, because there is so many people writing Bad Boys. I hope when the movie release, the Bad Boys tags, it's coming for movie, not for another name. That's my Yes, yes. expectation of Yeah, this movie. I mean, let's hope for the best. That would be wonderful, भाईजान। Yeah. और कहीं यहाँ पे कुछ, अगर आपके पास कुछ टाइम है तो जो ऑडियंस की जो कुछ सवालात है आपको पूछूं मैं, बिल्कुल questions. बिल्कुल बिल्कुल, absolutely। Okay, so there is a question here. कोई पूछ रहा है कि फिल्म का कुछ ऐसा कुछ परसेंटेज है आपके पास कि ये फिल्म नेटफ्लिक्स या ओटीटी में रिलीज हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं परसेंटेज है आपके दिमाग में? नहीं, जैसे कि 30% में भी नहीं, फिलहाल तो मेरे हिसाब से 100% थिएटर का ही प्लान है, ओनली सिनेमा। थिएटर का। ओके, do you remember दादा शो इन दुबई इन 90s? एक आदमी का नाम है परमनाथ। आपके फादर ने 90s में एक शो किया था दुबई में, आप कुछ याद है या फिर आए थे उनके साथ? तो तभी मुझे बच्चा, तभी मुझे याद नहीं होगा, बट आई एम श्योर किया होगा, जरूर किया होगा। बहुत शोज किए मेरे फादर ने वर्ल्ड वाइड। अच्छा, आपकी जो फोटोज है इंस्टाग्राम में, जो ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोज है, वो आपने अपने फादर को देख के की है वो स्टाइल फोटोज? जैसे कि कुछ आपके फादर के सुरक्षा टाइम में एक फोटोज है ब्लैक एंड व्हाइट, वैसा स्टाइल दिख रहा था आपके ऊपर। वो दरअसल उसका जो फोटो, मेरा जो पहला फोटो शूट था वो, तो उसका मैंने शूट, हम तभी लॉस एंजलिस में थे अमेरिका में, तो एक बहुत ही उम्दा फोटोग्राफर है फॉरेस्ट लियो, उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो शूट किया था। तो उस दिन मेरे फादर मेरे साथ आए थे उस शूट पे, मैं अकेला जा रहा था, उन्होंने बोला नहीं मैं आता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला यार थोड़ा इंटेंसिटी कर, ये कर, बट जब हमने फोटोज देखी तो हम सबको लगा यार ये तो बहुत ही स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस लग रहा है, you know, but I think it's not got anything to do with copying or anything. I think it's DNA, hereditary, you know, वो आ ही जाता है बेटे में। But thank you so much for appreciating my pictures. Thank you. सही बात। यहाँ पे एक बंदे हैं पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट मूवी आपकी फादर की कौन सी आने वाली है, और होप दैट यू विल वर्क विद योर फादर इन द फ्यूचर। डू यू हैव दैट काइंड ऑफ प्लान इन योर माइंड? I'm waiting to work with my father. I mean, he's not only my father, but he's also my favorite screen icon. तो मुझे काम करना ही है अपने डैड के साथ। उनकी अभी फिल्म आने वाली है बहुत जल्द, उनकी फिल्म आने वाली है, विवेक अग्निहोत्री के साथ ही फिल्म कर रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री, हाँ, ये जो कश्मीर के बारे में मेरे ख्याल से, हाँ ऐसा कुछ बात तो चल रही है, बहुत जल्दी आएगा जी। आपने उनके साथ इंटरव्यू किया है, देखा है? हाँ, यस यस, मैंने उनके साथ उनके ऑफिस में, जब मैं इंडिया गया था पिछले साल, पहले तो मैं धर्म जी के घर में गया था। धर्म जी, ही इज माय आइडल। आई फिनिश द इंटरव्यू विद धर्म जी, देन आई वेंट टू विवेक अग्निहोत्री। विवेक अग्निहोत्री ने मुझे एक बात कही थी मिथुन दा के बारे में कि ही इज वेरी नेचुरल एक्टर। ये अपने आप को सौंप देते हैं डायरेक्टर को, ऐसा कुछ नहीं करते जैसे कि मैं एक सुपरस्टार हूं या फिर लीजेंड हूं। नहीं, आप मेरे डायरेक्टर हो, आप क्या चाहते हैं मैं करने वाला हूँ। So he said so many sweet things about your father, and मुझे ये झलक आप में भी दिख रही है। How sweet, that's my honor भाईजान, that's very nice of you. यहाँ एक मोहतरमा पूछ रही है, अंकित नाम है इनका, कि he is very good dancer too, about you. किसने लिखा? She know you maybe. Who's written this भाईजान? Ankit, she's named Ankita Maheshwari Desire है, ये तो मेरी दोस्त है। She's being too nice. No. Thank you. So thank you for appreciating my dance moves. Okay, that's my question.
अपने फादर के जैसे डांसर हो या फिर गोविंदा के जैसे डांसर हो? प्लीज आई टेल वुड मी ऑनेस्टली। मैं तो मानना चाहूंगा दोनों दोनों ही लेजेंड मेरे में आ जाए तो मजा आ जाएगा। लेकिन आई हैव लर्न डांसिंग फ्रॉम माय फादर एंड गोविंदा। तो अगर मैं उनकी तरह डांस भी कर रहा हूँ तो आई वुड से जस्ट अ फैन। बट आई होप मुझे 5% भी उनका ग्रेस मिल जाएगा तो आई बी वेरी हैप्पी। वाह। हमारे जो बचपन का जब टाइम था, जब डिस्को डांसर का जब टाइम था, मैं भी एक जब बचपन में था, मैंने टाइगर की जो ड्रेस है, आई एम अ डिस्को डांसर, वो खरीदी थी यहाँ दुबई में। अरे वाह। तो अरे वाह। हम घर में वही डांस करते थे, आई एम अ डिस्को डांसर। तो उतना क्रेज था हमारा बचपन में। दैट्स सो स्वीट ब्रदर, दैट्स सो स्वीट। Hope that you are not bothered by my questions or by audience question. नॉट एट ऑल, इट्स माय प्लेजर। Okay. So अभी लॉकडाउन के टाइम में आप क्या कर रहे हो? अभी अब मुंबई में हो या फिर कहीं और? मैं मुंबई में ही हूँ, हमारे मड आइलैंड के बंगले में हैं हम यहाँ पर पिछले 2 महीने से लॉकडाउन में हैं। आई एम विद फैमिली एंड माय फैमिली, हाँ, बाय फैमिली एंड माय सिबलिंग्स, माय पेरेंट्स एंड माय 12 डॉग्स। तो मैं उनके साथ तो अपना वक्त वक्त बिता रहा हूँ और बहुत मजा आ रहा है। और बहुत जल्द होपफुली लॉकडाउन लिफ्ट होगा और फिर से शूटिंग शुरू होगी, इसी की उम्मीद है भाई। चल, यहाँ सब मुझे एक ही सवाल पूछ रहे हैं, कुछ 4-5 लोग पूछ रहे हैं, मिथुन दा क्यों सोशल मीडिया पे नहीं है? वो मिथुन दा को मैं इंस्टाग्राम में देखना चाहते हैं, ट्विटर में देखना चाहते हैं, ऐसा पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं मैंने अपने डैड को 1-2 बार समझाया था कि ये ट्विटर होता है, इंस्टाग्राम होता है। तो वो कुछ देख रहे थे 5 मिनट पे, बोलते यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये क्या है, इसमें क्या क्या करना पड़ता है, ये कौन है वो कौन है। फिर उनने सुना ट्रोलिंग होती है। बड़े बड़े एक्टरों को आजकल कुछ बदतमीज लोग भरे पड़े हैं, उन लोग बुरा वाला कह देते हैं। तो माय फादर डिडंट अंडरस्टैंड सोशल मीडिया मच, तो आई डोंट थिंक उनको कोई दिलचस्पी है। ही लाइक्स टू कीप लो प्रोफाइल। There is a girl from Abu Dhabi, she's named Afur. She's saying in Arabic, Waid Hadi. Hadi means you are very quiet. Are you quiet person? आई एम वेरी क्वाइट। Okay. I'm only talkative in while acting. I'm a very quiet and introverted person. So that means you are against your title of the movie, Bad Boy. Yes, but on screen I have to transform. I have to become the character. That's my job. So it's although I'm not that quiet. Also, I'm very extroverted with people I know. But otherwise, I like to not talk much. Okay. There is also from Russia people coming, and I don't know, they are writing Russian language because मुझे Russian नहीं आती है। वो आपके फादर के बहुत बड़े फैन है, big fans in Russia and Yes, yes. Uzbekistan. Russia में my father and Raj Kapoor are still the greatest superstars. Yes. अच्छा नमोशी जी, ये जो आपका नाम है नमोशी, इंग्लिश में हाँ, कुछ और है और हम प्रोनाउंस करते हैं कुछ और ये नाम आपको किसने दिया? आपके फादर ने या आपकी माँ युकिता जी ने? दिस इज माय इट्स माय फादर एंड मॉम बोथ, दोनों ने दिया। तो इसकी स्पेलिंग जो है NAMASHI, लेकिन प्रोनाउंसिएशन है नमोशी। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ओम नमः शिवाय। उससे ये ओके नाम उससे ये नाम है जी। ओके। अच्छा, कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आने वाले थे, ऐसा कुछ नहीं बोले प्रोड्यूसर वाले कि ये नाम आप चेंज करो, हम आपको दूसरा नाम देंगे, ऐसा कुछ होता था पहले? तो आजकल ये भी नहीं हो रहा है सिलसिला? नहीं, सजेशंस तो आते थे मुझे लोगों के कि कुछ ऐसा कुछ अमर रख लो या ऐसा कुछ रघु रख लो। मैंने बोला नहीं नहीं, नमोशी अच्छा नाम है, थोड़ा अलग सा नाम है। क्योंकि क्या है ना, मेरे फादर का नाम उनका स्क्रीन नाम अलग है। उनका बर्थ नाम है गौरंगो चक्रवर्ती, लेकिन उनका ओके। स्क्रीन नाम मृणाल सेन ने रखा था मिठुन चक्रवर्ती। जैसे कि अक्षय कुमार भी राजीव हैं, तो बहुत एक्टर्स अपना नाम बदलते हैं। गोविंदा ने भी अपना नाम बदला था। तो स्क्रीन नेम यस, कुछ लोग अलग करते हैं, बट आई लाइक माय नेम। आई होप पीपल लाइक इट टू। they will like it because there is one girl from Abu Dhabi, she's named Komal. She said very unique and lovely name. थैंक यू सो मच। Yeah. Also there is people from Morocco, they are saying hi to you and with love. She's named Layla. She's also a big fan of your father, and now she will be a fan of you also.
Oh, that's so nice. Hi to you. Hi to everyone from Morocco. That's lovely. Thank you. A guy from Ras Al Khaimah is saying your father role in Agnipath was the best role in his career. Do you agree? One of the best. I would say one of the best. Okay, because he was not the protagonist of the film, but he was at par with everyone in that film. Very challenging role, by the way, for a Bengali guy from Yeah. Calcutta to portray a South Indian from Chennai. I mean, it just goes on to show the range of my father. Yes. इसके बाद आपको और कौन से ऑफर आने वाले हैं या कुछ आने वाले थे ऑफर आपने रोक दिए या फिर there is something is coming on pipeline after Bad Boy? Yeah, there is another film. I'm in talks for another film with a good production, good director. लेकिन कुछ ऑफिशियल नहीं है क्योंकि हम वेट कर रहे हैं लॉकडाउन लिफ्ट हो तो हम मीटिंग्स करके उसको कंफर्म करें. बट देयर इज अनदर फिल्म दैट इज डेफिनेटली ऑन द पाइपलाइन आफ्टर बैड बॉय. That's very good. I hope that, as I said, Bad Boys tags became bigger than normal Bad Boys movie tag. बहुत people ये फिल्म देखे और इस फिल्म को सराहे और ये फिल्म अंदाज अपना अपना की जो लेवल है उससे भी उसको भी पार कर दे. एक सबसे यानी कुछ ऐसे रहे कि इस साल का जो हम लॉकडाउन खत्म हो जाएगा एक खुशखबरी आएगी कि बैड बॉय एक सुपर हिट फिल्म रिलीज होगी सिनेमाघर में. इंशाल्लाह भाईजान, इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. हमारी एक दिली ख्वाहिश है आप नमोशी मेरे साथ है. ऐसा लग रहा है कि मेरा बचपना आ गया. मैं मिथुन दा को देख रहा हूँ जो अर्ली अरे बाप 80s रे. के टाइम थे. हाँ, ऐसा दिख हाँ, रहा है मुझे. तो जी. मेरा एक एक दिली ख्वाहिश कि आप अगर ये मिथुन दा को आप दिखाए ये इंटरव्यू और उन्हें उन्हें एक 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 ही बात बस पूछे कि जो अरब आदमी है आप आपसे पूछ रहा है मिथुन दा एक बार सिर्फ एक बार एक छोटा मोटा इंटरव्यू करना चाहता है आपके साथ इंस्टाग्राम में. अगर इंस्टाग्राम एक महीने के लिए बस खोले आप या एक हफ्ते के लिए बस. बिल्कुल भाईजान, ये मेरी आपने ख्वाहिश कह है. दिया. आपने कह दिया तो मैं जरूर अपने फादर को दिखाऊंगा और वो जरूर आपका इंटरव्यू इंशाल्लाह बहुत जल्दी देंगे. आई विल डेफिनेटली शो दिस टू माय फादर. Inshallah, I hope so. इंशाल्लाह. I'm so sorry that I'm taking too much time from you, Namoshi. आप कुछ और बोलना चाहते हैं फिल्म के बारे में और कुछ बोलना चाहते हैं पब्लिक को, ऑडियंस को, अरब ऑडियंस को या फिर all audience which we have, mostly we have Arabic. Well, I would say everyone who's watching us, there are about 75 people watching us live from India and from Abu Dhabi. I would say at this time, इस वक्त हमें safe रहना है. We have to be safe, we have to be healthy, and we have to take precautions. We have to take coronavirus very seriously because it is a very intense time. तो आप लोग safe रहें, healthy रहें और ज़्यादा भटके मत. और दूसरी बात, बैड बॉय की बहुत जल्द हम टीजर लेके आने वाले हैं. पूरी उम्मीद है बहुत जल्द लाएंगे और उसके बाद बड़े पर्दे पे हम आपको अपनी फिल्म दिखा पाएंगे जो कि बहुत ही प्यारी सी फिल्म है. तो आई कांट वेट फॉर यू ऑल टू सी माय फिल्म. I hope that the movie show in all Arabian countries like Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Qatar, Kuwait, and Iraq, Yes. and also Morocco. These all countries, they have huge fan following for Mithunda. And वो आपकी झलक, आपके फादर की झलक आप में देखेंगे तो वो रिफ्रेश हो जाएगा उनके पुराना जमाना और टाइम. So we are very हम यानी we are waiting for this movie really. Thank you. I hope you all enjoy the film. Inshallah. Inshallah, we are enjoying the movie, and thank you so much, Namoshi, for this nice interview. And I'm so sorry that we take too much time, but Not at all, not at all. I had a दिल great नहीं time. भरता है आपसे बात करने का. नहीं, I enjoyed every minute and I'm so glad to have spoken to you, Bhaijan, and all the lovely people who joined us in this session. Thank you so much. So say hi to your family, hi to your father, big hi for your father, and take care of yourself also. और अपना अच्छा ख्याल रखना. और अरबी में हम सब बोलते हैं अहब्बक या नमोशी. So अहब्बक या नमोशी means we love you, Namoshi. Oh, how sweet. Thank you so much. That's so nice of you, Bhaijan.
Yeah, and you can say it in Arabic if you want to say it to the public, the same word. We want to hear it. Okay, well, how does it go? Yeah. I love you means in Arabic, أحبكم. أحبكم. I love you all. أحبكم. أحبكم. Yes. Okay. I guess I got it Thank you right. so much. I didn't embarrass myself. Yeah, you will mind it that when you come to Dubai, you say it in your premiere movie, أحبكم. That's Definitely. 100%. Thank you so much, Namoshi. Thank you so much. Thank you. Please take care of yourself and everyone at home and all watching. Thank you so much for joining us. Thank you. Thank you so much. Take care. Bye-bye. مع السلامة. باي باي. طبعا خلصنا اللقاء مع نموشي. We just finished with Namoshi Chakraborty. This is a very nice interview with him. I don't want to talk too much because I know most of people have some questions, but sorry for that. I couldn't take that questions. وسامحوني. طبعا I will say this in Arabic, so for Arabic people understand. He look very يعني يبين عليه انه هو مهذب واخلاقه عاليه واسلوبه يعني حلو في الحديث والكلام. وعجبني ايضا انه هو يعني يحب القديم. حتى يوم سالته عن الاغاني هو يحب الاغاني القديمه، ما يحب الاغاني الريميكس. فهذا شجعني صراحه اني اشوف فيلم الجاي ان الاغاني في هذا الفيلم اغاني جديده وليست اغاني مقلده ولا اغاني ريميكس. وغير ذلك انه قال لي الممثل المفضل اللي هو من الاجانب عنده هذاك اللي يمثل في لورنس العرب اوتيلي. يعني شيء جميل صراحه انه عنده يعني حتى محبه بالقديم، وهذا شيء يعطيك دافع. انا اتذكر شابانا ازمي سويت معها لقاء قالت لي ان اي فنان يبي يصير فنان لازم يشوف الكلاسيكيات قبل ما يدخل في مجال ان انا خلاص صرت ممثل وبشوف الجديد وانتهى الموضوع. لا، لازم تشوف الكلاسيكيات. So he's look like he have passion of acting. And also when he said to me that he like classical songs, I remember Shabana asked me when I interview her, she told me that we need actors, but they should know about the classical movies and classical songs very well. And Namoshi, he looked like the same person who loved this kind of stuff, and he loved all the stuff. And I am hoping this movie do very well. Especially this movie is the first movie of him and of Amreen Qureshi, and directed by one of the favorite director of me, also Rajkumar Santoshi. And I know Rajkumar Santoshi, he will do justice with the movie and he will bring good movie for us. اتمنى ذلك ان راجكمار سنتوشي راح يعمل لنا فيلم جميل وفيلم حلو. شكرا جزيلا على المشاهده، وشكرا جزيلا لكل اللي موجودين معاي. واقول لكم في النهايه ان شاء الله المره الجايه حاولوا انكم ما تتبخلون علينا في الشيرنج لللايفات. يعني كل ما اسوي معكم لايف حاولوا انكم شويه تبيضون الوجه، يعني نبغى اعداد اكثر شويه، ما تكون الاعداد بهذه الطريقه. على العموم شكرا جزيلا. Thank you so much and we'll see you inshallah with another live with another personality from any Hollywood or Hollywood or Arabwood. نشوفكم ان شاء الله في لقاءات قادمه ان شاء الله مع فنانين اخرين وسيلبرتيز في المستقبل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا.